My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, this is the month of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का महीना है। Christmas is nothing but the Holy Spirit coming upon a virgin and forming God Himself in her womb. क्रिसमस और कुछ नहीं लेकिन पवित्र आत्मा एक कुंवारी के ऊपर में आया और परमेश्वर को उसके गर्भ में रखा। We celebrate the coming of the Holy Spirit into a human being to make God come to live with us. हम पवित्र आत्मा का उत्सव मनाते हैं कि पवित्र आत्मा मानव रूप में आया ताकि परमेश्वर हम मनुष्यों में रह सके। God with us, Emmanuel. परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल। Even today I believe the Holy Spirit will come upon you. आज मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। The Spirit will be poured upon you from on high. पवित्र आत्मा आप ऊपर से उंडेल दिया जाएगा। And you shall conceive Jesus in your spirit. और आप अपनी आत्मा में यीशु को धारण करेंगे। And you shall be transformed as the temple of the living God. और आप जीवित परमेश्वर के भवन के रूप में बदल जाएंगे। 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16, 6:19. 6:19। The Holy Spirit makes you the temple of God. पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का भवन बना देता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, when the Holy Spirit came upon Mary, जब पवित्र आत्मा मरियम पर आया, in Luke chapter 1 and verse 35, लूका अध्याय 1:35 में, power came upon her. तब उस पर सामर्थ आई। The power of the Most High God came upon her. परम प्रधान सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ उस पर आई। Zechariah 4:6 says, जकरिया 4:6 कहता है, not by might, न तो शक्ति से, not by power, न तो बल से, but by my Spirit. परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। Yes, the Holy Spirit brings the power of the Most High God into you. हाँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ लेकर आता है And births Jesus within you. और आपके अंदर यीशु को जन्म देता है। You may say, I am weak. शायद आप ये कहें कि मैं तो कमजोर हूँ, I have no strength. मेरे अंदर कोई बल नहीं है, I am not able to enjoy the presence of Jesus. मैं यीशु की उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पा रहा, I am not able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, I am not able to believe. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, I am not able to get the miracles from the hands of Jesus. मैं यीशु मसीह की ओर से चमत्कार नहीं ले पा रहा हूँ। Do not be afraid. तो आप भयभीत ना हो। God gives you His own Spirit, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देते, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, to come upon you and fill you with the most high power of the Most High God. कि आपको उस सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ से भर दे। It is greater than the greatest power of electricity or authorities of the world. ये तो बिजली या फिर संसार के जितने भी अधिकारी उनकी सामर्थ से बढ़कर है। God's power. परमेश्वर की सामर्थ। Today the power of the Holy Spirit shall come upon you as you ask Him. और जैसे आज आप उससे मांगते, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर में आएगी। And He will call all the blessings which you do not find in your life into being by His power. आपके जीवन में जो आशीष आप नहीं पाते हैं, उन आशीषों को वो अपनी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में लेकर आएंगे। You shall have the fullness of Jesus in you and the fullness of the blessings that comes when you have Jesus in you. आप में यीशु की भरपूरी होगी और यीशु की आशीषों की भरपूरी होगी जब यीशु आप में होंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, there is freedom. तो स्वतंत्रता होती है, There is liberty. वहां पर स्वतंत्रता होती है। 2 Corinthians 3:17 says so. दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, You are liberated from all the powers of darkness and the bondages. आप सारे अंधकार की शक्ति और सारे बंधन से छुड़ाए जाते हैं। In Luke chapter 4 and verse 18, लूका अध्याय 4:18, Jesus said, यीशु ने कहा The Spirit of the Lord is upon me, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है and He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. और उसने मुझे भेजा है ताकि मैं बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं। Today you may be a prisoner to sorrow, शायद आज आप दुख के बंदी हो, to pain, आप होंगे, to sin,
पाप के, to pleasures, आनंद के, to financial difficulties, सुख विलास या फिर आर्थिक मुश्किलों के, to the powers of darkness, अंधकार की शक्तियों के, to the powers of the wicked people. दुष्ट लोगों की सामर्थ के। But as the Holy Spirit comes upon you, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, He will proclaim freedom to you, वो आपके लिए स्वतंत्रता की घोषणा करेगा। and you will be liberated from all your bondages. आप अपने सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे। Now, how does the Holy Spirit come into you and me? अब कैसे पवित्र आत्मा आप में और मुझ में आता है? In 1 Timothy chapter 3 and verse 16, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16, the Bible says God came into this world in flesh in the form of Jesus. बाइबल कहती कि परमेश्वर इस संसार में शरीर रूप में आए, यीशु के स्वरूप में आए। He went to the cross. वो क्रूस पर गए, He shed his blood. उसने अपना लहू बहाया And by his blood, he cleanses us and liberates us from the hands of the devil and sin. और उसके द्वारा वो हमें छुटकारा देते हैं, पाप और शैतान के हाथ से हमें छुड़ाते हैं। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7। As he made a way for every human being to be cleansed from sin through his blood that he shed on the cross. और जैसे कि उसने क्रूस पर अपना जो लहू बहाया, उसके द्वारा पाप से छुटकारा पाने के लिए हर एक मनुष्य के लिए मार्ग बनाया। He had to make a way for every person to enjoy that forgiveness of sin personally. और उसे वो मार्ग बनाना पड़ा कि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में पापों की क्षमा का आनंद उठा सके। So according to John 16:7, he went back to heaven. और इसलिए यूहन्ना 16:7 के अनुसार वो स्वर्ग में वापस गए। And he sent his spirit to come and live in you and me so that you would have the understanding to give our lives to Jesus for our sins to be forgiven through his blood. ताकि हम इस समझ को प्राप्त करें कि उसने अपनी जान आपके और मेरे लिए दे दी, ताकि आपके और मेरे पापों को क्षमा किया जा सके। Today, according to Luke chapter 11 and verse 13, आज लूका अध्याय 11 वचन 13 के अनुसार when we ask Jesus to send his spirit upon us and fill our spirit with his Holy Spirit, जब हम यीशु से मांगते हैं कि वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा को भेजे और हमें पवित्र आत्मा से भर दे, Jesus answers and sends his spirit into us. प्रभु यीशु उसका उत्तर देते हैं और अपनी आत्मा हम में भेजते हैं। And our body becomes the temple of the Holy Spirit. और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है। And according to 1 Corinthians 12:3, और पहला कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार the Holy Spirit turns our eyes on Jesus. पवित्र आत्मा हमारी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं। When we cry, I am in bondage of sin, death and curse. जब हम पुकारते हैं कि मैं तो पाप के और श्राप के बंधन में पड़ा हूं, The Holy Spirit turns our eyes on the solution to get out of our bondages. That's the blood of Jesus Christ. जो पवित्र आत्मा है वो हमारी आंखें उस हल के ऊपर लगाती है कि हम अपने बंधन से छुटकारा पाए, और वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। And when we cry, Lord, cleanse me from my sin. जब हम पुकारते हैं कि प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, Cleanse me from my addiction. प्रभु मुझे मेरी बुरी आदतों से छुटकारा दे, Cleanse me from the curses of sin. प्रभु मुझे पाप के श्राप से तू शुद्ध कर। Oh, the Holy Spirit gives us the strength to receive the forgiveness of sins through the cleansing of the blood of Jesus. और पवित्र आत्मा निश्चय हमें वहां पर स्वीकार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। The Holy Spirit gives us the freedom from sin. और पवित्र आत्मा हमें पापों से छुटकारा देता है, आजाद करता है। Romans 8:2 says, रोमियो 8:2 कहता है, through the Spirit of the Lord Jesus Christ, you are set free from sin प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा आप पाप से छुटकारा पाते हैं and death. और मृत्यु से पाते हैं छुटकारा। Yes, 2 Corinthians 3:6 says, हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 3:6 कहता है the Spirit of God gives life. कि परमेश्वर का आत्मा ही हमें जीवन देता है, Our sins are forgiven. और हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। And as the Holy Spirit comes into us, और जैसे पवित्र आत्मा हम में आता है, He gives us new tongue, वो हमें नई भाषा देता है, new life, नया जीवन, new language, नई भाषा, new thoughts. नए विचार। And all these are the thoughts of Jesus. और ये सब जो है ये तो यीशु के विचार हैं, The new ways of life
of Jesus, तो यीशु के जीवन के नए तरीके हैं। the new language of Jesus. ये तो यीशु की नई भाषा है। Mark 16:17 says so. मरकुस अध्याय 16 वचन 17 कहता है, If you believe in Jesus, the Holy Spirit gives you new tongue. अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको नई नई भाषा देता है, And that drives out the devil and the devil's ways. और वो तो शैतान को, दुष्ट आत्माओं को और उसके मार्गों को भगा देते हैं। And as the Lord enables us to speak in new tongue, और जैसे प्रभु हमें शक्ति देते हैं कि हम नई भाषा में बोलें। 1 Corinthians 14:4 says, पहला कुरिन्थियों 14:4 कहता है, we edify ourselves. हम खुद की उन्नति करते हैं, We cleanse ourselves. हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। Many years ago, बहुत साल पहले when I was 18 years old, जब मैं 18 साल का था, I gave my life to Jesus. मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। One night the Holy Spirit came upon me, एक रात पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आया and I began to cry for my sins, repenting before Jesus. और मैं तो बस रोते और रोते रहा, अपने पापों के लिए यीशु के सामने पश्चाताप करते रहा। I could enjoy the love Jesus has for me through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने जो मुझसे प्रेम रखा उसका मैं आनंद उठा पाया। And I felt I have betrayed him by living in sin, even knowing him as Lord. और मैंने ऐसा महसूस किया कि उसे प्रभु के रूप में जानकर भी मैं पाप में जीवन जिया, ये इसका मतलब मैंने उसे धोखा दिया है। The Holy Spirit made me repent. पवित्र आत्मा ने मुझे पश्चाताप करने लगाया। But then suddenly a deep cleansing came upon me. और फिर अचानक गहरा शुद्धिकरण मुझ में आया And I felt the burden of sin lifting. और मैंने महसूस किया कि पाप का बोझ उठा दिया गया I could enjoy the love Jesus has for me. और यीशु मेरे लिए जो प्रेम रखे हैं उसका मैं आनंद उठा पाया। I could experience the cleansing of my soul. मैं अपनी आत्मा के शुद्धिकरण का अनुभव करने लगा And I became a new creature, और मैं नई सृष्टि बन गया, a child of God, परमेश्वर की संतान, the child of Jesus, यीशु की संतान, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And that day all my addictions left. और उस दिन मेरी सारी बुरी आदतें मुझे छोड़कर चली गई। I went back to my college, मैं अपने कॉलेज में वापस started studying again. और मैंने फिर से पढ़ाई करनी शुरू की। But as I would go in the cycle to the college, और जैसे मैं साइकिल से कॉलेज जाता था, I would hear the worldly music coming in the air from some shop or something. मैं किसी दुकान से या कहीं से वहां पर हवा में जो है वहां पर संसार के संगीत को सुना करता था See the worldly portraits and pictures. और सांसारिक चित्रों और तस्वीरों को देखता था। A spirit of sin, lust, and temptation would come into me. पाप और अभिलाषा और परीक्षा की आत्मा मुझ में आती थी And I would cry, और मैं पुकार उठता, help me, Lord. प्रभु मेरी मदद कीजिए। I don't want to backslide and get back into the hands of the devil. मैं वापस पीछे जाकर शैतान के हाथों में फंसना नहीं चाहता। Help me, Lord. मेरी मदद कीजिए। And the Spirit of God would rise up within me, और परमेश्वर का आत्मा मुझ में उभर कर खड़ा हो make me speak in new tongues. और मुझे नई नई भाषा में बोलने लगा। And as these tongues would come out of my tongue, it would be new tongues. It would make me a new creature. जैसे नई अन्य भाषा मेरे मुंह से निकलती है, मुझे नई सृष्टि बनाती थी And a divine strength would come upon me. और मेरे ऊपर में ईश्वरीय सामर्थ आता था। And I would say, you devil who is coming back to tempt me and take me away, I cast you out in Jesus' name. मैं कहता, शैतान जो मेरी परीक्षा करने और मुझे गिराने के लिए आता है, मैं यीशु के नाम में तुझे निकाल देता हूं। And the thoughts would go away. और वो विचार चले जाते, The worldly feelings would go away. सांसारिक भावनाएं, महसूसीकरण चले जाते। The power of the temptation of the world from the demon powers would leave me. और संसार की परीक्षा की जो सामर्थ, जो दुष्ट आत्माओं की सामर्थ थी, वो मुझसे दूर हो जाती A joy would fill me. और आनंद मुझे भर देता। I would praise God saying, I'm the child of Jesus now. मैं परमेश्वर की स्तुति करता और कहता कि अब मैं यीशु की संतान हूं। That's how God enabled me to conquer every temptation of the flesh from the devil. और इसी तरह से परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया कि शैतान की हर एक परीक्षा के ऊपर मैं जयवंत हो। The Spirit of the Lord gives us life परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन देता है, and gives us the power to overcome all the temptation of sin. हमें सामर्थ देता है कि पाप की हर एक परीक्षा के ऊपर जयवंत हो जाएं। Today, God wants to fill you with that Spirit which came upon Mary
which came upon the disciples, which came upon me, to deliver you from all sin and sinful pleasures and bondages caused by sin. आज परमेश्वर आपको उन सारी आत्माओं से, बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं। उस आत्मा के द्वारा जो मरियम पर आए, जो चेलों पर आए, जो मुझ पर आए, परमेश्वर आपको पाप के हर एक बंधन से छुटकारा देना चाहते हैं। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Secondly, और दूसरी बात, the Holy Spirit gives you freedom from the bondages of diseases, पवित्र आत्मा आपको बीमारियों के बंधन से छुटकारा देता है, sicknesses, बीमारियों से, and the curse of sickness brought by the demon power. और दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के द्वारा जो बीमारी के श्राप है उससे। In Romans 8 and verse 11, रोमियो अध्याय 8 वचन 11 में the Bible says, बाइबल कहती है, the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. उसकी आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया है वो आप में वास करती है। That same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा will give you life also to raise your mortal body, वो आपको जीवन देगा ताकि आपके नश्वर देहों को जिलाए, because the Spirit of God is living in you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। Yes, the Holy Spirit who is in you will liberate you from your sicknesses. हाँ, परमेश्वर का आत्मा जो आप में रहता है वो आपकी सारी बीमारियों से आजाद करेगा। Yes, you are the temple of the Holy Spirit. हाँ, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। So he will rise up within your organs and bring life to your body. तो वो आपके शरीर के अंगों में जीवित होगा और आपके शरीर को जीवन देगा। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। If you read James 5:14 and 15, अगर आप याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15 पढ़ें, the Bible says, if anyone is sick, बाइबल कहती है कि यदि कोई बीमार है, let him call the elders of the church for them to anoint the sick with oil in the name of the Lord. कि वो कलीसिया के पुरनियों को, प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले, And the Lord will raise him up. और उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उसे बचाएंगे। The Lord will raise her up. परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा करेंगे। When the prayer of faith is offered, anointing the sick with oil. जब बीमार पर तेल का अभिषेक करके वहां पर उस बीमार के लिए प्रार्थना की जाती है। Oil signifies the Holy Spirit. तेल जो है वो तो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। There's no power in the oil. तेल में कोई सामर्थ्य नहीं है। When you put oil upon a sick person, you are saying, Holy Spirit, come upon the body of my brother, my sister, which is your temple. और जब आप तेल किसी व्यक्ति के ऊपर रखते हैं तो आप यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे इस भाई के शरीर पर, मेरी इस बहन के शरीर पर आए, से बीमारी से चंगाई दे। If that person has the Holy Spirit in him or her, the Spirit of God will rise up and bring healing to those organs. और अगर उस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा है तो निश्चय परमेश्वर उस भाई या बहन को उठाकर खड़ा करेगा, उसके शरीर में चंगाई लेकर आएगा And the miracle happened. और चमत्कार होंगे। There is a dear sister, Navita Bhagirathi from Lucknow. एक प्यारी बहन है नवीता भगीरथी लखनऊ से, Voluntary prayer warrior in the Lucknow prayer tower. जो लखनऊ प्रेयर टावर में वॉलंटरी प्रेयर वॉरियर है। And she's also a staff nurse in a kidney transplant unit. और वो साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में स्टाफ नर्स है। For 12 years, her legs had swelling. 12 साल से उनके पैरों पर सूजन थी। Because she was working in the kidney unit, she knew that the legs of the kidney patients would swell quite a bit. और जबकि वो किडनी यूनिट में वहां पर काम करती थी, वो जानती थी कि जो किडनी पेशेंट है उनके पैर हमेशा सूज जाते हैं। So she was also afraid whether she had a kidney ailment. और फिर वो डर गई कि क्या उन्हें भी किडनी की कोई समस्या है। But all the test reports showed normal. लेकिन सारे जो टेस्ट रिपोर्ट थे वो तो सब नॉर्मल बता रहे थे। Doctors couldn't diagnose the problem. डॉक्टर जो है उस समस्या को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। She felt it was an attack from the devil because she served the Lord. और उसने महसूस किया क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करती, इसीलिए शैतान की ओर से हमला है। She used to feel so ashamed before people when they look at her legs and say it's swollen. और उन्हें बहुत शर्म आती थी जब लोगों के सामने वो जाती और लोग उनके पैरों को देखकर कहते कि आपके पैर तो सूजे हुए हैं। Added to that, she had excruciating pain. और इसी के साथ साथ उन्हें भयानक दर्द होता था। She couldn't walk properly. वो सही तरीके से चल नहीं पाती थी। But she never stopped serving the Lord. लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की सेवा करना नहीं रोका। One famous doctor said, एक विख्यात डॉक्टर ने कहा, medicine is not working for you. दवाइयाँ आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। Hope,
prayer works. आशा है कि प्रार्थना काम करेगी, So keep on praying. इसलिए आप प्रार्थना करते चले जाएं। At that time in 2023 April, और उस समय 2023 के अप्रैल महीने में my wife and I went to Lucknow to have a partners meeting. मेरी पत्नी वहां पर लखनऊ में गए ताकि वहां पर पार्टनर्स मीटिंग कर सकें। And she was there in the meeting as a volunteer to help other people. और वो बहन वहां पर उस मीटिंग में थी वॉलेंटियर के रूप में कि दूसरों की मदद करे। That day her legs were swollen badly. और उस दिन उनके पैर बुरी तरह से सूज गए थे। She could not even put on her footwear. और वो तो अपनी चप्पल या जूते भी नहीं पहन पा रही थी। But during the prayer time she went on anointing other people with oil. लेकिन उस प्रार्थना के समय में वो दूसरे लोगों के ऊपर तेल का अभिषेक करती चली गई। After I had prayed for all the people, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद she came in the line. वो उस कतार में आई। And I had laid my hands upon her and asked her, "What do you want?" और मैंने अपने हाथ उस पर रखे और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। She said, "I want the gifts of the Holy Spirit. ने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। I want the Holy Spirit to fill me मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे भर दे without measure." असीम रूप में। And I had prayed for her to be filled with the Spirit of God, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाए anointing her with oil. और उसके ऊपर तेल का अभिषेक किया। She went home. वो घर में गई She slept peacefully that night. और उस रात बड़े चैन से सो पाई। Next morning, she saw a miracle. और अगली सुबह उसने एक चमत्कार देखा। The swelling in the legs had reduced considerably. और उसके पैरों की जो सूजन थी तो बहुत कम हो गई थी। And within a week, और बस एक हफ्ते के भीतर the swelling disappeared totally. उसकी जो सूजन थी वो पूरी तरह गायब हो गई। All the pains left. सारा दर्द चला गया। She started walking normally. वो सामान्य रूप में चलने लगी। 12 years of agony was gone. 12 साल की पीड़ा चली गई थी। And there is tremendous improvement in the ministry. God is using her mightily. और सेवकाई में भी बहुत उन्नति हुई। परमेश्वर उसका सामर्थ्य रीति से उपयोग कर रहे हैं। And the doctor who treated her said, prayer really works. और जिस डॉक्टर ने उनका उपचार किया उन्होंने कहा कि प्रार्थना सच में काम करती है। God will deliver you from your sickness. परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से छुटकारा देंगे। Put your hands on the place where you have the sickness or upon your chest. I want to pray for you right now. आपको जहाँ कहीं भी बीमारी है या फिर जहाँ भी परेशानी, आप उस जगह पर या अपने सीने पर हाथ रखिए। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Father, I pray that the Lord Holy Spirit would enter into their body. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके शरीर में प्रवेश करे। Release them from their sickness. और इनकी बीमारी से इन्हें स्वतंत्र कर दे। Every sickness has already been borne by Jesus on the cross. हर एक बीमारी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पहले सह लिया है। And by the stripes of Jesus we are healed. और यीशु ने जो कोड़े खाए उससे हम चंगे हो चुके हैं। Lord Holy Spirit, by your power you raised the body of Jesus. पवित्र आत्मा, आपने अपनी सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह की देह को जीवित किया। Raise their organs now. इनके शरीर के अंगों को अभी जीवित की। Let their organs come back to life और इनके शरीर के अंग वापस जीवित हो। and be healed by the stripes of और Jesus. यीशु ने जो कोड़े खाए उससे चंगे हो। Resurrect their body. इनके शरीर को जीवित कीजिए। Resurrect their life. इनके जीवन को जीवित कीजिए। Resurrect their mind. इनके मनों को जीवित कीजिए। Let there be healing in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगाई होने। Come back to life, you organs, in Jesus' name. शरीर के अंग जो है वो तो यीशु के नाम में फिर से जीवित हो By जाए। the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के For the द्वारा। glory of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए Thank you for this miracle, Lord. इस चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Your organs are coming back to life right now. अभी आपके शरीर के अंग फिर से जीवित हो रहे हैं। Check up right now. अभी आप जांच लीजिए। Praise God. परमेश्वर की स्तुति कीजिए Enjoy the miracle. और इस चमत्कार का आनंद उठाइए। Enjoy the healing. चंगाई का आनंद Your उठाइए। body is precious to Jesus. आपकी देह प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है। It is the temple of the living ये God. तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। Thank Him. उसे धन्यवाद दीजिए। Keep your body as the temple of the living God. आपके शरीर को परमेश्वर के मंदिर के जैसे बनाए रखें। Free from all the things of the world. संसार की हर एक बातों से स्वतंत्र रखें। Use it to bring healing to other people. इसका उपयोग कीजिए ताकि दूसरे लोगों के जीवन में चंगाई लाए। The Holy Spirit will resurrect your organs. पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंगों को फिर से जीवित करेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। And finally,
और फिर अंत में the Holy Spirit delivers us from the powers of the devil. पवित्र आत्मा हमें शैतान के सामर्थ्य से छुटकारा देता है। Isaiah 59:19. यशायाह 59:19। When the enemy comes in like a flood, और जब शत्रु महानद के जैसे आता है, the Holy Spirit raises a standard against him. पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। The devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान तो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, But Jesus comes to give life, लेकिन यीशु मसीह आते हैं कि जीवन दे, abundant life. बहुतायत का जीवन दे। Yes, the Lord Jesus, through the Holy Spirit, will drive the devils out of your life हाँ, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से शैतान को दूर निकाल देंगे and keep you free from the powers of darkness. और आपको अंधकार की सामर्थ से आजाद रखेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, deliver your child from all the attacks of the devil अपनी संतान को शैतान के हर एक हमले से छुटकारा दीजिए by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। No more witchcraft, कोई जादू टोना नहीं, no more attacks of the devil. शैतान के और कोई हमले नहीं। Let there be freedom. ये आजाद हो जाए In Jesus' name, यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless.